Good morning, students. This is Mohammad Mohit. Today, we are here for revision of chapter number 12, Heron's Formula. In the previous lecture, we have discussed about this chapter, but today we are here for the revision of this chapter. So, first of all, we have to start with this introduction. Heron's Formula. Herones was Greek mathematician. ये ग्रीक के मैथमेटिशियन थे. He was given the formula Heron's formula. Basically, Heron's formula is used when three sides of the triangle is given to you and we need to find its area. Then we have to find by the help of Heron's formula. Suppose a triangle, we are having a triangle. We know that if it is a height and this one is a base, the formula is 1 upon 2 into base into height. If this type of triangle is to be there, means equilateral triangle, and its all sides are equal, then its formula is root 3 upon 4 into side square. But when the scalene triangle is given to you, then how to find its area? So we need the Heron's formula. So with the help of Heron's formula, we have to find the area of the triangle in which the height is not given to us. जिसमें हमें height नहीं given होती है, उस केस में हम Heron's formula का यूज करते हैं. ठीक है? So let us start with one example. कैसे फाइंड आउट करते हैं? सपोज मैंने एक ट्राइंगल ले लिया, सिंपल ट्राइंगल. दिस साइड इज 5, 7 and 10. These are the sides of the triangle. This triangle is A, B, C. Give them any unit. मैं तो सेंटीमीटर में मान लिया. तो first of all, we assume the sides A will be 5, B 10 and C is 7 centimeters. These are the sides. मैंने ABC के फॉर्म में एज्यूम कर लिया. ABC के फॉर्म में क्यों करा है? आपको अगर दिखाए फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ द ट्राइंगल बाय हीरोन्स फॉर्मूला इज एरिया ऑफ द ट्राइंगल इक्वल्स टू S इंटू S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C अंडर रूट. दिस इज हीरोन्स फॉर्मूला. तो here we need to ABCs, the sides of the triangle. तो ABC हमें पता चल गया. We also require to find the S. अब S क्या है यहाँ पर? तो S means सेमी पेरीमीटर. S का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर का हाफ ऑफ द पेरीमीटर. तो you can also write P upon 2. And we know that the perimeter of the triangle is sum of all sides. So first of all we have to find the value of S. S means semi perimeter, perimeter upon 2, perimeter A plus B plus C, मतलब sum of all sides upon 2 equals to 5 plus 10 plus 7 upon 2. Add them. 15 and 7, 22 upon 2 means 11 centimeter. And remember one thing, the value of S is always greater than these three sides. ट्राइंगल की तीनों साइड से बड़ी होगी S की वैल्यू. अगर आपकी छोटी आती है तो आप इसको मतलब गलत कर रहे हैं. तो you have to check once again. Now put these values in the formula. S means 11, 11 minus A 5, 11 minus 10, 11 minus 7 under root. Clear? Now 11 into 6 into 1 into 4 in under root. So we have to find the value of this. इसका अंडर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है हमें. तो टू मेथड्स आर देयर. यू कैन मल्टीप्लाई ऑल द वैल्यूज एंड फाइंड द स्क्वायर रूट. एंड सेकंड मेथड इज दैट यू जस्ट कन्वर्ट ऑल द वैल्यूज, ऑल द नंबर्स यू हैव टू स्प्लिट अप, और उसके बाद पेयरिंग करके हम बाहर जो निकालते हैं उस मेथड से हम सॉल्व कर लेंगे. वो ज्यादा इजी रहेगा. अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, अब जो छोटे नंबर है, जब बड़े नंबर आते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल टेक टाइम. तो आप क्या करें,
इनको यहीं पर स्प्लिट कर ले। स्प्लिट करना आपको आता है, 11 स्प्लिट नहीं होगा, 6 को हम बोल सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया हमारा स्प्लिट। अब टेक द कॉमन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू डू द पेयरिंग। एक ही पेयर हो रहा है इसके अंदर, पेयर जिसका बनता है उसमें से एक नंबर बाहर आता है, जिसका पेयर नहीं बनता है वो एज इट इज स्क्वायर रूट में रहते हैं। जो स्क्वायर रूट में है इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब कितना आ जाएगा ये, 11 टू 22, 22 3 66, तो आंसर इज 26 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकालना है। एरिया इज ऑलवेज कमिंग एज यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया 2 इंटू या 2 रूट 66। यू कैन ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 66 बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो ये कैसे निकलता है 66 बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। बट नो नीड, अगर आपको यहां तक सॉल्व, खाली एरिया सॉल्व करना है तो आप यहां तक सॉल्व कर सकते हैं। बट लिसन वन थिंग, अगर हमसे पूछता कि मुझे इसके अंदर वाले पार्ट को पेंट करना है और इसको पेंट करने के लिए ₹5 पर सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च हो रहा है, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 5 रुपीज खर्च हो रहे हैं, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने खर्च होंगे, तो वही है, मुझे इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 5 टू 10, तो लगभग हमारा अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाएगा 10 स्क्वायर रूट 66 रुपीज। तो बताइए क्या रुपीज रूट की फॉर्म में होती है? कभी आप ये कहते हैं कि मुझे रूट 10 रुपीज चाहिए, रूट 20 रुपीज चाहिए? कभी अपने मदर फादर से ऐसी बात करी आपने कि मुझे आज रूट 20 चाहिए, मुझे पेन लेके आना है, मुझे रूट 30 रुपीज दे दीजिए? नहीं होता है ना। तो इसलिए रूट की फॉर्म में आप यहां से हटाएंगे, तो इसमें हमें यहां से रूट को हटाना पड़ेगा, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। ये अप्रोक्सीमेटली लगभग 8 पॉइंट समथिंग आ जाएगी लगभग, क्योंकि 66 है ये और 8 8 64 होता है, तो 8 से थोड़ी सी बड़ी आएगी। मैं 8.1 ले लेता हूं अप्रोक्सीमेटली, मैंने फाइंड आउट नहीं करी, ध्यान रखना 8.1 इसकी वैल्यू नहीं है, मैंने अप्रोक्सीमेटली मान लिया। इट माइट बी पॉसिबल, ये हो सकती है इसके आसपास की कोई वैल्यू, क्योंकि इट विल टेक टाइम। अगर मैं आपको सॉल्व करता हूं कितना आ जाएगा, ये लगभग ये 81 रुपीज आ जाएगा। तो आपको कब फाइंड आउट करनी है इसकी वैल्यू, जब हमें रुपीस में फाइंड आउट करना हो या ऐसी वैल्यू में जिसको हम रूट की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? तो दिस इज हीरोन्स फॉर्मूला। बाय दिस फॉर्मूला वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। We require this formula when sides are given to you and we don't have any height. जब इसके हमें height, altitude कुछ given नहीं होता है, then we have to require to find this. ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? इसी को बोलते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। एक मेथड की और बात कर लेते हैं। सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से होने हैं, कोई नया मेथड अप्लाई नहीं होना है, बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है कब हमें हीरोन्स यूज करना है और कब हमें ट्रायंगल का दूसरा फॉर्मूला यूज करना है। एक मैं और एग्जांपल आपको देता हूं। सपोज वी आर हैविंग अ क्वाड्रिलेटरल, मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका बेस है दिस, ये हो गया 5, ये हमें नहीं पता है, ये मैंने मान ली 10 और ये मैंने मान ली 17। अ ट्रायंगल ए बी सी डी, सॉरी अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग 4 साइड्स, यू नो, एंड ये क्या हो गया, इस तरीके से हमें गिवन है। सपोज ये भी हमें नहीं गिवन है, हमें खाली क्वाड्रिलेटरल गिवन है, बट हमें गिवन है कि यहां पर ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। एट डी द एंगल फॉर्म इज 90 डिग्री। अब आपको फाइंड करना है द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। यू नो वेरी वेल व्हेन द रेक्टेंगल इज गिवन टू यू, यू नो कि हाउ टू फाइंड एरिया। एल इनटू बी स्क्वायर, साइड स्क्वायर, ट्रेपेजियम 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। बाकी आप सब पता है आपको, बट हाउ टू फाइंड दिस क्वाड्रिलेटरल, ये कोई आइडेंटिकल फिगर नहीं है जिसका हमें फॉर्मूला पता हो। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल। अब 2 ट्रायंगल का फाइंड आउट करेंगे और ऐड कर देंगे दोनों को। बट क्वेश्चन इज दैट क्या मैं इसको यहां से जोड़ूं या यहां से जोड़ूं, ये हमारे पास प्रॉब्लम हो रही है। तो आपको कहां से जोड़ना है, कहां से आपको डायगोनल ज्वाइन करना है, जहां पे 90 गिवन हो ना एंगल, उसके सामने वाली डायगोनल ड्रॉ कर दें। अगर मेरे को ये डायगोनल गिवन होती तो मैं ये ड्रॉ करता। तो कौन सी डायगोनल ड्रॉ करनी है, just opposite to the 90 डिग्री, just opposite to the perpendicular। अब ये ड्रॉ किया।
अब मुझे इसको फाइंड आउट करना है, इसको फाइंड आउट करना है। इसमें 3 साइड हो गई, इनमें 3 साइड हो गई, बट इसमें मुझे तीनों साइड गिवन नहीं है, इसमें भी मुझे तीनों साइड गिवन नहीं है। तो क्या करेंगे, अब मुझे ये तीसरी साइड निकालना पड़ेगी। ये देखिए, अब ये बन गया राइट एंगल ट्राइंगल और ये बन गया इसकी हाइपोटेन्यूस। तो मैं हाइपोटेन्यूस वाले फॉर्मूले से, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से इसकी थर्ड साइड निकाल लूंगा। तो पहले बात कर लेते हैं इस ट्राइंगल की। इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, इट्स h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h हमें नहीं पता है, p परपेंडिकुलर मैंने इसको मान लिया 5 स्क्वायर प्लस बेस 12 स्क्वायर। ठीक है, यूनिट हमने मान ली सबकी सेंटीमीटर है। अगर यूनिट गिवन नहीं होती है तो हम लास्ट में लिख देते हैं यूनिट, अगर कोई लेंथ निकालनी है और अगर एरिया निकालना है तो स्क्वायर यूनिट या यूनिट स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया 25 प्लस 144 when we are going to add 169। h स्क्वायर था, यहां पहुंचने के बाद ये रूट बन जाएगा। द वैल्यू ऑफ h इज 13 सेंटीमीटर्स। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूस आ गई, मींस ये साइड 13 सेंटीमीटर है। अब हमारे पास तीनों की 3-3 साइड है, वी कैन फाइंड इजिली। बट रिमेंबर, यहां पर भी एक चीज और देखनी है हमें, इसमें कोई 90 फॉर्म नहीं हो रहा है, तो इसको तो हम निकालेंगे बाय हीरोन्स फॉर्मूला। बट इसमें एक 90 डिग्री एंगल बन रहा है। जब भी 90 दिया होता है, मतलब परपेंडिकुलर दिया होता है, तो वी हैव टू फाइंड बाय द फॉर्मूला ऑफ 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट। तो आप इससे फाइंड आउट करें। निकल ये हीरोन से भी जाएगा, बट इट विल टेक टाइम। तो यू हैव टू फाइंड बाय हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो सॉल्व करते हैं इसको। इसी ट्रायंगल को कर रहा हूं पहले मैं। तो एरिया ऑफ ADC इक्वल्स टू 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट। तो 1/2 इनटू बेस, बेस कितना है हमारे पास 12 और हाइट कितनी है 5। अब आप कहेंगे सर इसमें तो AC की नीड ही नहीं पड़ी थी, तो आपने क्यों फाइंड आउट करी यहां पर AC? हमने AC इसलिए फाइंड आउट करी है क्योंकि AC हमें इसमें नीड पड़ेगी, तो हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया उसको, या बाद में करना पड़ता, बात एक ही है। तो मैंने उसको पहले ही फाइंड आउट कर लिया। तो कितना हो जाएगा ये 6 और 6 5 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो कितना इजिली वाला ट्राइंगल हमारे पास आ गया। इस ट्राइंगल का एरिया कितना इजिली आ गया। अगर मैं पाइथागोरस यूज करता तो इट विल टेक टाइम। अब बात करते हैं सेकंड ट्राइंगल की। इन ट्राइंगल ABC, ये हम करेंगे बाय हीरोन्स फॉर्मूला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी एज्यूम ABC साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। A हमने मान लिया 10 सेंटीमीटर, B हमने मान लिया 17 सेंटीमीटर एंड C will be 13 centimeters. So first of all we have to find the side S equals to semi-perimeter. Semi-perimeter means A plus B plus C upon 2, 10 plus 17 plus 13 upon 2, 17 plus 13 30 और ये हो गया 40, 40 upon 2 means 20 centimeters. So this is the value of S. मैंने कहा था S की वैल्यू हमेशा तीनों साइड से बड़ी आती है, तो इट्स बी ग्रेटर, ये इसके बड़ी वैल्यू आई है। अब बात करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल की। कितना हो जाएगा S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C इन अंडर रूट या स्क्वायर रूट। द वैल्यू ऑफ S इज 20, 20 माइनस A मीन्स 10, 20 माइनस 17, 20 माइनस 13, स्क्वायर रूट, सॉल्व इट। 20 ये आ गया हमारे पास 10 माइनस 3 एंड माइनस इंटू 3 इंटू 7 इन स्क्वायर रूट। मेरे पास स्पेस थोड़ा सा कम है, मैं इसको ऊपर कर रहा हूं, यहां पे देख सकते हैं आप लोग। कितना आ गया हमारे पास 20 इंटू 10 इंटू 3 इंटू 7। मैंने आपको बताया था कि या तो आप इसकी मल्टीप्लाई कर ले, उसके बाद आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर ले, पर ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड इट्स फैक्टर्स, या इसको हम स्प्लिट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7। अब डू द पेयरिंग, 1 पेयर 1 पेयर इसका, इन दोनों का एक पेयर बन गया। जिसका पेयर नहीं है वो अंदर ही रहेगा। तो 2 इंटू 5 बाहर आ गया, इसका पेयर नहीं है, इसका पेयर नहीं है, उसका पेयर नहीं है। तो 7 3 21, 21 2 42, ये आ गया हमारा 10
√42 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ वी हैव टू ऐड, अब इसको और इसको हम ऐड करेंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। बट हियर अगेन, जब इस केस में भी हम जब ऐड करते हैं तो रूट से रूट होना चाहिए सिमिलर रूट, देन वी कैन ऐड। अब सिमिलर रूट नहीं है तो ऐड नहीं हो पाएगा, तो इस केस में भी हमें यहाँ पर रूट की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। अब जरा यहाँ पर रूट की वैल्यू निकाल लेते हैं। आपको आना भी चाहिए कि हाउ टू फाइंड, वैसा क्लास 8 में पढ़ चुके हैं कि हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट बाई लॉन्ग डिविजन मेथड। हम क्या करते हैं, 42 ले लिया, 42 हमें पता है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो अप्रोक्सीमेटली हम इसके डेसिमल की 2 डिजिट तक सॉल्व कर लेंगे। 2 डिजिट सॉल्व करने के लिए मैं डेसिमल के बाद 2 पेयर बना लूंगा। डेसिमल के बाद 0 की वैल्यू रहती तो मैंने 0 ऐड कर दिया। अब फर्स्ट पेयर ये आ गया। नाउ सॉल्व इट। ये नंबर, ये पेयर किसी का स्क्वायर नहीं है, तो इससे छोटा स्क्वायर नंबर 6 6 36, 36 इज अ स्क्वायर नंबर। क्लियर? ये आ गया 6, इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 12 माइनस 6 6 और यहाँ 0, ये आ गया हमारा 12। यहाँ पे ऐड करते हैं। नाउ वी रिक्वायर टू फाइंड एट दिस पेयर, हम इसको यहाँ पे जोड़ेंगे। जब ये 2 0 आएंगे, ये आफ्टर द डेसिमल है तो डेसिमल ऊपर शिफ्ट हो जाता है लाइक दिस। अब फ्रॉम विच नंबर वी हैव टू मल्टीप्लाई 12, वी गिव 600 और लेस देन 600। तो मैं रफ में करता हूं, मैंने सपोज 5 से किया, 5 5 से 25 कैरी 2, 5 2 6, 5 2 10, 12 कैरी 1 6। ये ज्यादा आ गया तो इसका मतलब 4 से जाएगा, ये 6 5 से ज्यादा आ गया तो मैं 4 से इसको मल्टीप्लाई करता हूं। 4 4 16 कैरी 1, 4 2 8 1 9 और 4 बन जा 4। नाउ सब्ट्रैक्ट इट, 4 0 1, यहां पे ऐड कर लेते हैं इन दोनों। अब लाओ लास्ट पेयर, सॉल्व तो ये और आगे तक होता रहेगा, बट हम कहां तक निकालेंगे, ओनली अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई किससे करूं, मेरे पास ये नंबर आ जाए या इससे छोटा आ जाए। अब अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई रफ में करके देखता हूं, 3 से करता हूं, 3 3 9, 3 8 24 कैरी 2, 3 2 6 7 8, 3 बन जा 3। बहुत छोटा आ रहा है तो मतलब मुझे थोड़ा बड़े नंबर से करना पड़ेगा। इसको रब कर देता हूँ, स्पेस कम है मेरे पास। मैं 1 2 8 की मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, 5 से करता हूँ। 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 8 जा 40 42 कैरी 4, 5 4 जा 5 2 जा 10 और 4 14 कैरी 1, 5 बन जा 6। अभी भी बहुत छोटा आ रहा है, मैं और बढ़ा देता हूं नंबर को, 7 से करते हैं। 7 7 जा 49 कैरी 4, 7 8 जा 56 60 0 कैरी 6, 7 2 जा 14 49 6 20 कैरी 2, 7 बन जा 7 और 2 9। ये लगभग इसके से थोड़ा छोटा आ गया। अगर मैं 8 से करूंगा तो मेरे हिसाब से थोड़ा ज्यादा पहुंच जाएगा। फिर भी आप एक बार ट्राई जरूर करेंगे, ये नहीं आपको यहीं स्किप कर दें, एक बार आप देखेंगे कि ज्यादा तो नहीं आ रहा है, हो सकता है 8 से आ जाए। 8 8 जा 64 कैरी 6, 8 8 जा 64 और 6 70 कैरी 7, 8 2 जा 16 एंड 7 23 कैरी 2, 8 बन जा 8 और 2 10। ये देखिए हाँ ये छोटा आ गया बेटा, 8 से लेना पड़ेगा हमें, तो हमें 7 से नहीं 8 से सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं इसकी मल्टीप्लाई 8 से करता हूँ, जैसे कि मल्टीप्लाई में पहले कर चुका हूँ तो मुझे दोबारा मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है। अब एक बार देख सकते हैं, 8 8 जा 64 4 कैरी 6, 8 8 जा 64 एंड 6 70 70 0 कैरी 7, 8 2 जा 16 एंड 7 23 कैरी 2, 8 बन जाए 2 10। तो 1 0 3 0 4, ये कितने बार में आया, 8 टाइम्स में आया। जो बचा वो नीचे राइट कर देते हैं। या अप्रोक्सीमेटली हमारा कितना आ गया, 6 9 बस 96, ये हमारा बचा, तो छोड़ देंगे ऐसे रिमाइंडर। नाउ अब हमें निकालना था एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल था दोनों का सम। पहले का हमारा आंसर ये है 30 प्लस दूसरे का आंसर क्या है हमारा, ये रहा 10 इंटू 42 की वैल्यू हमने निकाली यहां से 6.48। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू बॉड मास, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मल्टीप्लाई देम, ये आ जाएगा 64.8। नाउ ऐड देम, मतलब ऐड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 49।
94.8 centimeter square. This is the area of quadrilateral. So by this method, we have to find the area of the quadrilateral by dividing the triangle into two parts, and we can add them. I hope all you understand. We will provide related to the worksheet and some test paper that you have to solve at your home. Thank you.